Today we will discuss questions from miscellaneous exercise. The first question is, find the coordinates of the point where line through A and B crosses the plane 2x plus y plus z equals 7. Yes, let line through points A and B crosses the plane at the point M with coordinates A, B and C. This is the plane whose equation is given. This is the line AB and let it crosses the plane at the point M. हमें इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है, राइट? यस, ये जो M पॉइंट है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें तब मिलेगा जब हम प्लेन और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट? हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो हमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर. मुझे लाइन के ऊपर एक नहीं दो पॉइंट्स पता हैं. आई कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम. और अब मुझे निकालना है लाइन का डायरेक्शन वेक्टर. नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन ए बी. यस, लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, सो आई टेक द डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी. आप उसे बी टू ए भी ले सकते हो, राइट? सो डायरेक्शन वेक्टर बी विल बी गिवन बाय, yes, I have taken it along vector AB. So perform head minus tail, that is B minus A. I'll get minus I cap plus J cap plus 6K cap. यानी कि लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के DRs आ गए -1, 1 and 6. अब लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय x माइनस x1 ओवर b1 इक्वल्स y माइनस y1 ओवर b2 इक्वल्स z माइनस z1 ओवर b3, जहाँ पर x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से लाइन पास कर रही है, एंड b1, b2 एंड b3 दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन. Now this point A lies on the line, so I'll be using this point. So this will be x1, this is y1 and this is z1. डायरेक्शन वेक्टर के dr से -1, 1, 6, तो ये होगा b1, ये b2 and ये b3. So equation will be x minus x1, that is 3 over b1 which is -1 equals y minus y1. y1 is -4, so here I'll get y plus 4 over b2 which is 1 equals z minus z1. z1 is -5, so I'll get z plus 5 over b3 which is 6 equals lambda. So equation of line AB is given by this, right? Now look here, ये जो M point है वो लाइन AB के ऊपर भी है और प्लेन के ऊपर भी है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो M विथ कोऑर्डिनेट्स A, B एंड C लाइज ऑन द लाइन. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो इन द इक्वेशन ऑफ लाइन आई विल रिप्लेस x विद A, y विद B, z विद C. आई विल गेट A minus 3 over -1 equals B plus 4 over 1 equals C plus 5 over 6 equals lambda. So from here A is minus lambda plus 3, B will be lambda minus 4 and C will be 6 lambda minus 5, right? तो अब मुझे A, B और C की वैल्यू निकालने के लिए मुझे lambda पता होना चाहिए, right? अब lambda निकालने के लिए, yes, ये जो पॉइंट M है वो इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, क्योंकि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये. तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. सो प्लेन की इक्वेशन में भी x को रिप्लेस कीजिए A से, y को रिप्लेस कीजिए B से और z को रिप्लेस कीजिए C से. आई विल गेट 2a प्लस b प्लस c इक्वल्स 7. नाउ व्हाट वाज a? इट वाज माइनस लेमडा प्लस 3, सो रिप्लेस a विथ माइनस लेमडा प्लस 3. Similarly, b was lambda minus 4, so replace b with lambda minus 4, and c was 6 lambda minus 5. So when I'll open the bracket, I'll get minus 2 lambda plus 6 plus lambda minus 4 plus 6 lambda minus 5 equals 7. So from here, 6 lambda plus lambda, 7 lambda, 7 lambda minus 2 lambda will give you 5 lambda.
and this is 6 minus 4, 2. 2 minus 5 will give you minus 3 equals 7. So from here lambda will be equal to 2, right? तो अब lambda आपके पास 2 है. So from here a will be equal to minus lambda plus 3. Put the value of lambda, I'll get 1. B is lambda minus 4, that is 2 minus 4, I'll get minus 2. C is 6 lambda minus 5, that is 12 minus 5 equals 7. So coordinates of the point M are 1, minus 2, 7. So this is the point where line AB crosses this plane. Next question, it is question number 10 from the miscellaneous exercise. The question is, find the coordinates of the point where line through the points A and B crosses YZ plane. Right? Question is similar to the previous one. आपको बताना है लाइन AB YZ प्लेन को किस पॉइंट पर क्रॉस करेगी, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. यस, let line through the points A and B crosses YZ plane at this point M with coordinates A, B and C. Right? हमें A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब ये जो M पॉइंट है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AB एंड YZ प्लेन. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए और प्लेन की इक्वेशन चाहिए. राइट? नाउ प्लेन इज YZ प्लेन. सो YZ प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0. राइट? ये याद रखना. YZ प्लेन की इक्वेशन है x इक्वल्स 0. XY प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल्स 0 एंड ZX प्लेन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स 0. सो हियर इन दिस क्वेश्चन द प्लेन इज YZ प्लेन, सो इट्स इक्वेशन विल बी x equals 0. Now we are to find the equation of the line AB. अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन वेक्टर. AB के ऊपर हमें पॉइंट पता है, या तो हम A पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं या B पॉइंट को. राइट? सो अब हमें निकालना है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ AB. डायरेक्शन वेक्टर ऑफ AB डिनोटेड विद वेक्टर B, I have taken it to be vector AB. So it will be equal to, yes, perform head minus tail, that is B minus A, minus 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. Right? अब यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर के DRs आ गए -2, 3, -5. ये आपका B1, ये B2, ये B3. राइट? और पॉइंट मैं ये यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर ये मेरा रोल प्ले करेगा x1 का, ये y1 का और ये z1 का. राइट? सो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x minus 5 over -2 equals y minus 1 over 3 equals z minus 6 over -5 equals lambda. Now M point lies on the line because it is the point of intersection of the line and the plane. तो M पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो लाइन की इक्वेशन में हमने x को रिप्लेस किया A से, y को रिप्लेस किया B से और z को रिप्लेस किया C से. सो आई गेट A minus 5 over -2 equals B minus 1 over 3 equals C minus 6 over -5 equals lambda. तो यहाँ से A आएगा -2 lambda plus 5, B आएगा 3 lambda plus 1 और C आएगा -5 lambda plus 6. सो अब A, B और C निकालने के लिए हमें लैम्डा की ज़रूरत है. राइट? यस. अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए. दैट मीन्स वी नीड वन मोर कंडीशन. यस, एंड द कंडीशन इज, ये जो पॉइंट M है इट लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो. राइट? तो अब ये पॉइंट YZ प्लेन पर लाई कर रहा है, तो YZ प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. राइट? सो x को रिप्लेस कर दीजिए A से. सो आई गेट A इक्वल 0 एंड व्हाट वाज A? -2 lambda plus 5. सो आई गेट -2 lambda plus 5 इक्वल 0, दैट इज lambda इज 5/2. अब ये lambda की वैल्यू हम पुट करेंगे हियर. सो आई गेट A इक्वल्स -2 into 5/2 plus 5, 0.
B is 3 lambda plus 1 and lambda is 5 by 2, so I'll get 17 by 2. C was minus 5 lambda plus 6, so I'll get minus 13 by 2. So coordinates of the point M are 0, 17 by 2, minus 13 by 2. Next question is, find the distance of the point minus 1, minus 5, minus 10 from the point of intersection of this line and the plane. यानी कि हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन. यानी कि इस लाइन और प्लेन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हमें वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. राइट तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए. ओके, सो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन बी M with coordinates A, B and C. राइट अब सबसे पहले हम लाइन और प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे. राइट लाइन की इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल्स दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर. ये आपको पता है डायरेक्शन वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन वेक्टर के DRs हैं 3, 4, 2, वो डिनोमिनेटर में आएंगे और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 2. सो x - 2 इक्वल्स y + 1 और यहाँ पर आएगा ये z - 2. सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बिकम x - 2/3 इक्वल्स y + 1/4 इक्वल्स z - 2/2 इक्वल्स lambda. Now write the equation of the plane in Cartesian form. It will be x minus y plus z equals 5. Right? अब m जो है इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो सबसे पहले m जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा लाइन की इक्वेशन को. तो x को रिप्लेस कीजिए a से, y को रिप्लेस कीजिए b से, z को रिप्लेस कीजिए c से. I'll get a - 2/3 equals b + 1/4 equals c - 2/2 equals lambda. So from here a is 3 lambda plus 2, b is 4 lambda minus 1 and c is 2 lambda plus 2. अब इसी तरीके से m lies on the plane, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. So I'll get a minus b plus c equals 5. Yes. Now what was a? It is 3 lambda plus 2, b is 4 lambda minus 1 and c is 2 lambda plus 2. So on simplification I'll get 3 lambda plus 2 minus 4 lambda plus 1 plus 2 lambda plus 2 equals 5. So from here lambda will be 0. Right? So a 3 lambda plus 2 will be 2, b was 4 lambda minus 1, I'll get -1 and c was 2 lambda plus 2, so I'll get 2. lambda को हमने 0 से रिप्लेस किया. राइट तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -1, 2. राइट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. अगर इस पॉइंट को नाम दिया मैंने a और ये पॉइंट है m, तो मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस am. अब 11th क्लास में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था. सो am विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर्ड, y2 - y1 होल स्क्वायर्ड प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर्ड. राइट सो दिस इज x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. I'll get square root of 2 + 1 whole squared plus -1 + 5 squared plus 2 + 10 whole squared. So I'll get square root of 9 plus 16 plus 144. That is square root of 169, which is 13. So distance AM is 13 units. Yes. Next question is, find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, 3 and parallel to the planes this and this. हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में. लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है. राइट अब एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर. राइट हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है वेक्टर फॉर्म में.
In the vector form, equation of the line is given by vector r equals vector a plus lambda times vector b. यहाँ पर वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहाँ से लाइन पास कर रही है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3. So position vector of this point will be I cap plus 2j cap plus 3k cap. यानी कि वेक्टर A will be I cap plus 2j cap plus 3k cap. तो हमें ये वेक्टर A पता है, तो अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें वेक्टर B यानी कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है. Yes, according to the question, line is parallel to this plane, P1 plane, whose equation is vector r dot I cap minus j cap plus 2k cap equals 5. Yes, अब लाइन इस प्लेन के पैरेलल है. सो डू यू अग्री कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा. अब नॉर्मल वेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वेक्टर b विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर n1. और n1 वेक्टर कौन है? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, राइट. इसी तरीके से लाइन इज पैरेलल टू द सेकेंड प्लेन, तो सेकेंड प्लेन का भी जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. सो दैट मीन्स वेक्टर b विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर n2. अब b वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर n2 के भी परपेंडिकुलर है. सो डू यू अग्री वेक्टर b विल बी गिवन बाय वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सो वेक्टर b विल बी गिवन बाय वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2. नाउ व्हाट इज n1? वेक्टर n1 इस प्लेन p1 का नॉर्मल वेक्टर है, विच इज दिस. सो वेक्टर n1 इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर n2 है सेकेंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, विच इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस k cap. So now we will find out n1 cross n2. So form a determinant, first row I cap, j cap, k cap, फिर n1 वेक्टर के कंपोनेंट्स 1, -1, 2, और फिर n2 वेक्टर के कंपोनेंट्स 3, 1, 1. Now expand the determinant. I'll get vector n1 cross vector n2 as -3i cap plus 5j cap plus 4k cap. So direction vector of the line is given by -3i cap plus 5j cap plus 4k cap. So equation of the line, vector r equals vector a plus lambda times vector b. Put the value vector a and vector b. Vector a was, yes, I cap plus 2j cap plus 3k cap, and vector b is this. So equation of the line in vector form will be vector r equals I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times -3i cap plus 5j cap plus 4k cap. Next question. Find the equation of the plane that contains the point 1, -1, 2 and perpendicular to the planes P1 and P2, whose equations are given. आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो, राइट. अब प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें उसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसका नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, राइट. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0, जहाँ पर x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से प्लेन पास कर रहा है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेन पास कर रहा है 1, -1, 2 से, तो ये आपका x1, दिस इज y1 एंड दिस इज z1. यस, सो व्हेन आई रिप्लेस x1 with 1, y1 with -1 and z1 with 2, I'll get the equation as a into x minus 1 plus b into y plus 1 plus c into z minus 2 equals 0. अब प्लेन की इक्वेशन को डिटर्मिन करने के लिए मुझे ये a, b और c पता होने चाहिए. ये a, b और c क्या है? दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर,
यानी कि मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए उसका नॉर्मल वेक्टर भी पता होना चाहिए. सो लेट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिनोटेड विथ वेक्टर एन. राइट, तो हमें ये वेक्टर एन फाइंड आउट करना है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू P1 and P2. So as plane is perpendicular to plane P1, so do you agree कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि वेक्टर n जो कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन P1. It is denoted with vector n1. So where vector n1 is normal vector of plane P1, which is given by 2i cap plus 3j cap minus 2k cap. इसी तरीके से प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड प्लेन. तो अगेन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि वेक्टर n विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर n2, जहां पर वेक्टर n2 है सेकेंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, विच विल बी गिवन बाय i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. सो वेक्टर n जो है वो वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर n2 के भी परपेंडिकुलर है. सो डू यू अग्री वेक्टर n विल बी गिवन बाय वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में वेक्टर n1 के कंपोनेंट्स, देन थर्ड रो में वेक्टर n2 के कंपोनेंट्स. Expand the determinant along the first row, I'll get minus 5i cap plus 4j cap plus k cap. So normal vector of the plane is given by minus 5i cap plus 4j cap plus k cap. So therefore, direction ratios of the normal vector are minus 5, 4, 1. So this is A, this is B, and this is C. So equation of the plane is a into x minus 1 plus b into y plus 1 plus c into z minus 2 equals 0. So put the values of a, b and c. A is negative 5, b is 4 and c is 1. So I'll get the equation of the plane as minus 5x plus 4y plus z plus 7 equals to 0. Next question. If a plane has intercepts a, b and c and is at a distance of p units from origin, then prove that 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square equals 1 over p square. Right? प्लेन के आपको x, y और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स गिवन है और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से पता है. आपको ये प्रूव करना है. राइट? x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, z इंटरसेप्ट इज c. So by intercept form, equation of the plane will be x over a plus y over b plus z over c equals 1. इसे यहाँ ट्रांसपोज करो. x over a plus y over b plus z over c minus 1 equals 0. So जब आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, यानी कि इस फॉर्म से, तो a कैपिटल A will be 1 over a, capital B will be 1 over B, capital C will be 1 over C and D will be minus 1. Right? अब distance of the plane from origin, that is from 0, 0, 0 is P. Yes. Distance of the plane from the point x1, y1 and z1 is given by ax1 plus by1 plus cz1 plus D over square root of a squared plus b squared plus c squared. अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओरिजिन से, तो x1 होगा 0, y1 होगा 0, z1 होगा 0. सो डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय 1 by a into 0 plus 1 by b into 0 plus 1 by c into 0 minus 1 over square root of 1 by a squared plus 1 by b squared plus 1 by c squared. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना है? p. राइट? सो आई गेट p equals absolute value of negative 1 over square root of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. So from here I'll get p equals 1 over this
Squaring both sides, I'll get p square equals 1 over 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. And this will imply 1 over p square is equal to 1 over a squared plus 1 over b squared plus 1 over c square.